Crawling, walking, running, throwing, jumping, squatting, all these as a sequence would probably be called physical literacy. Physical literacy as a word was coined by the British scholar Margaret Whitehead. We, in the last few years as a nation, have focused on making this country alphabetically and numerically literate. But in the bargain, we've lost on a very important aspect, and that is physical literacy. If you look at India as a country, we've always looked at physical literacy as a very important component. We may not have used the word physical literacy, but our culture actually had physical activity as a key component, whether it's yoga, kalari, or our art forms of Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali. All of these things were movement-based. Are things like temples being on hilltops and yatras needing us to move a lot, or our culture of sitting down and eating, of bending to elders, all of these things actually had physical movement incorporated into our lifestyles. How many kids in today's day and age have thrown a ball as far as it can go, or as high as it can be thrown? If the boundaries of your physical being are not being explored, how can you even think of your mind to be a visionary? I think the last few years has seen a steady rise, an alarming rise in the number of lifestyle diseases which have come. The decline of physical literacy has meant the increase in lifestyle diseases. Kids having diabetes very young, heart rates being very high among professionals very young. The number of people who have had back issues has been tremendous. The diabetes issues have been tremendous. Obesity has been tremendous. Kids, a majority of the kids ending up with flat foot, and many of them not able to do simple things like running backwards. I think these are major issues for a nation which is so young. Because from a health perspective, from a happiness perspective, from a mental health perspective, from a community perspective, I think addressing physical literacy solves many of these problems. In the last 2 years, we've had great public engagements. We've gone ahead and done things where people have come together to support physical literacy, to be part of the journey. We've gone ahead to try and influence governments to ensure that public policy incorporates physical literacy as a key component, and to have multiple ministries come together to own physical literacy. We've gone to education departments to tell them the importance of kids playing sport. It is beyond medals is what we are talking about, and that is what in the next few years we need to build on. As a nation, we are at a point where we need to intervene. We need to implement what the learnings have over the past few years. We have met scientists, we have met scholars, we have met people who have worked in the field to come together with a plan which ensures that as a nation we start to become more physically literate. It's time for us to move further. It's time for us to organize this into a setup which is more sustainable, more research which is important, more advocacy which is important, more policy which is important, because each state is different, each city is different, each community is different. So what works in Kerala may not work in Kashmir, what works in Gujarat may not work in Mizoram. I think it's very important for us, the breadth and length and breadth of the country has different cultures, and it's very important that we incorporate that which is existing into the policy to ensure that each one of us is moving and taking advantage of being physically literate. In the last few years, successive governments have spoken about the importance of sport. I think steadily over the years, investment in sport has gone up.
people have started looking at sport differently from what they've looked at in the last few years. Government has looked at yoga very differently. Today, World Yoga Day has started off, and people across the country have started to do running as a major activity, yoga as a major activity. It's time to deepen this further. So I request governments to come be part of this journey, to share this vision and to build on this vision to ensure that there is a population which is happy, which is healthy, and which has access to the activities which can be done physically. It's time for governments to invest, it's time for corporates to invest, it's time for citizens to participate, and it's time for all of us to come together as a nation to build on physical literacy. अच्छा, मैंने अब तो कर दिया मैम का। किस नाम से हो? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके।
परसाई सर, आप शुरू करना चाहेंगे? Yes. Good morning, good afternoon, everyone. I'm Jayashree Kiawat, CPI. आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मिस्टर मणि? I request all to mute themselves when because ma'am is speaking. अगर सब लोग अभी म्यूट पे कर लेंगे तो आसान रहेगा सुनना. परसाई जी स्टार्ट करें क्या? परसाई जी, आपका वेट कर रहे हैं हम लोग. शुरू करें हम. हाँ शुरू करना है आपको. हेलो, आवाज तो नहीं है क्या? परसाई जी आवाज आ रही है, बोलिए. परसाई जी, आपका आवाज आ रहा है अब. परसाई जी बोल, शुरू कीजिए. अगर नहीं करेंगे तो मैं स्टार्ट करूँगी. बताइए. 267 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं. कितनों को इनवाइट किया अपन ने आज, परसाई जी? इनको मैसेज डालने के परसाई जी को बोले वो ऑन करें, म्यूट है शायद उनका. हाँ ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ. परसाई जी आप आ जाइए. नहीं मेरा लिंक हो गया, हम आपको यहाँ ढूंढ ही रहे थे. प्लीज आप यहीं कर. चलिए स्टार्ट. नमस्कार. एलएमएस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के व्यायाम शिक्षकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है. ये प्रशिक्षण 5 दिवस चलेगा और प्रति दिवस 1.5 घंटे के सेशन आयोजित किए जाएंगे. आज हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत मैडम, हमारे एपीडी और संचालक गौतम सिंह साहब, संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी उपस्थित हैं. और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच आज प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी श्री गोपी चंद जी भी उपस्थित हैं. एलएमएस फाउंडेशन से हमारे बीच में आदरणीय श्री ए.के. दत्ता जी, डॉक्टर वी.के. डबाज साहब, श्री अमित मलिक जी और एलएमएस की पूरी टीम सम्मिलित है. सभी का स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूँ. आज का उद्घाटन सत्र प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय द्विवेदी सर जी को आमंत्रित करता हूँ कि प्रशिक्षण के संबंध में हमें मार्गदर्शन करें. द्विवेदी जी को अनम्यूट कर दीजिए. अमित जी, द्विवेदी जी सर को अनम्यूट कर दीजिए. किस नाम से सर उनका? के द्विवेदी जी हैं. द्विवेदी जी. के द्विवेदी के नाम से क्या सर उनका? के द्विवेदी जी के नाम से है, मैंने देखा इसमें. उन कर दिया उनको अनम्यूट. आदरणीय द्विवेदी सर. मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ. बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज. ये एंट्री नहीं है, ओनली आपको अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं द्विवेदी जी. एंट्री. हाँ, so good morning to you all.
I really find my profound privilege to welcome the gem of India, the sports person of the century, Shri Pulela Gopi Chand ji, and the team of ELMS consisting of Shri Datta Dabas Sahab, Shri Amit ji. So this is the difficult time, as we all know, but we have converted this difficulty into the opportunity. So really, it's very heartening that such a wonderful team of ELMS is decided to guide us, and we, all our team and our PTIs, they are also very enthusiastic to join this course. I really welcome welcome you all. और पुलेला सर का मैं लगभग 2007 में उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिला था। वो ग्वालियर आए थे और पद्मा विद्यालय था हमारा। आई वॉज DO ग्वालियर देयर, सो आई रिमेम्बर स्टिल दिस मोमेंट। कि मैम को भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारा आदरणीय मैम का भी मैं स्वागत करता हूँ कि पद्मा विद्यालय में करीब सैकड़ों लड़कियों ने घेर लिया था सर को, और फिर वहां पे अभी भी मेरे पास उनका ऑटोग्राफ है। तो मैं ये शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ये जो प्रोग्राम है वो हमारे PTIs के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और हम, ये तो शुरुआत है, हमारी CPI मैम जो खुद भी एक स्पोर्ट पर्सन है, और उनके लीडरशिप में हम बिल्कुल हम ये टाइम को नहीं गवा रहे हैं, हम और भी प्लानिंग कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ राज्य है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा फ्यूचर में करने वाला है। इतना मैं इन शुभकामनाओं के साथ रिक्वेस्ट करूंगा CPI मैम को कि वो कुछ मार्गदर्शन दें, या परसाई जी को मैं हैंड ओवर करता हूं। यावत मैम की कृपया हमारे सभी व्यायाम निर्देशकों को हमें मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। इस कोरोना के अवधि में अत्यधिक, एक मिनट प्लीज, सभी को नमस्कार। आज अत्यधिक हर्ष का विषय है कि हम लोग एक आज नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वैसे तो खिलाड़ियों का प्रदेश रहा है, और विगत कई वर्षों से, मैं 2 वर्षों से मैं देख रही थी कि पहले हम 4th स्थान पे थे, 2 वर्ष से हमारी मेडल टेबल में हम 3rd आ गए। अभी हमें बड़ी खुशी है कि PTI के लिए हम लोगों ने इस पीरियड में एक प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया है, और ज़्यादा ज़रूरत इस बात की, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टीचर्स को अगर हम ये ज्ञान कराएं। और जो आज का टॉपिक लेकर आए हैं फिजिकल लिटरेसी का, तो मैं सबसे पहले गोपी चंद जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश में हमारे PTI के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, और हम लोगों ने इस वर्ष सोचा ही था कि इस वर्ष हम प्रारंभ से ही हमारे PTI को स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि फील्ड में हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेशन हो सके, उनका स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बच्चों के बीच में आए, और बच्चों को स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप कर पाए, और बच्चों को हम जो फिजिकल लिटरेसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता सकें। तो ज़रूरी है उसके पहले हमारे टीचर्स को हम इसके बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी दे पाएँ। और ये बच्चों के लिए साथ साथ इस अवधि में उनके इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं सभी PTI चाहूँगी कि ये अभी आज हमारा छोटा बैच है, तो मैं अनुरोध करूँगी कि आगे हम इसको जारी रखेंगे। 5 डेज कोर्स ही है, तो आगे हमने, यद्यपि हमारे त्रिवेंद्रम से हमने साइंस से एग्रीमेंट किया, हम उनके साथ भी अपने PTI को ट्रेन कर रहे हैं, पर अगर ये 5 डेज के बाद हमको और टाइम आप लोग देंगे तो हम अपने PTI को फिजिकल लिटरेसी कॉन्सेप्ट पे भी अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। पुनः आप सभी का स्वागत है, और मैं चाहूँगी आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें। थैंक यू। आदरणीय आयुक्त महोदय के उद्बोधन के उपरांत मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रशिक्षक आदरणीय गोपी चंद जी को। गोपी चंद जी जो हमारे भारत के खेल जगत की एक बहुत मशहूर हस्ती हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। प्रकाश पादुकोण जी के बाद दूसरे भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने ये बैडमिंटन टूर्नामेंट में विजेता रहे हैं। अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित है, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित है। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय चंद जी को कि हमारे सभी PTI को हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैडम और द्विवेदी फॉर द वार्म वेलकम। पहले तो मैं सभी को
धन्यवाद देता हूँ कि इस कोविड के समय में सभी ने समय निकाल के यहाँ ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइज किया. Would like to congratulate the Madhya Pradesh government and the entire team for this wonderful initiative. I on my behalf of ELMS, मैं यही कहूँगा, मैं शायद हिंदी इतना शुद्ध बोल नहीं पाऊंगा पर कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए. बस मेरा यही है कि मेरा जिंदगी का जो एक छोटी सी सिचुएशन है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. मैं 1995 से बैडमिंटन खेल रहा हूँ. करीब अभी तक 35 इयर्स हो गए. 10 साल के उस समय से मैं कभी भी बैडमिंटन खेलता था, इसी उम्मीद में कि मैं प्लेयर बनूं. और जब मैं कोच बना तभी भी यही मन में था कि प्लेयर और जीतना ही एक बड़ी मकसद होती है स्पोर्ट के लिए. और उसी शुरुआत के साथ मैं खेला भी और उसी माइंडसेट के साथ मैं कोच भी बना. पर 2015 में ऐसी एक घटना आई कि मैं एक छोटी बच्ची को कोच करता था, तो वो शटल को पकड़ नहीं पाई, कैच नहीं कर पाई. और उसने जब शटल को कैच नहीं करा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो लड़की बड़ी सी बेकार है. तो मैं एक डिस्गस्ट के साथ मैं ऐसा कह के हट गया कि यार छोड़ो तुम, और बाजू निकल गया. तो वो लड़की 13 साल की थी. वो मेरे पास आई और पूछी कि सर मुझे सिखाओ कि पकड़ते कैसे हैं, कैच कैसे करते हैं. उस एक क्वेश्चन ने मुझे हिला दिया कि क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि स्पोर्ट में कि सभी लोग ऐसे चीज कर पाएंगे. हालांकि शायद क्योंकि सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है और एक जनरेशन पहले सब लोग ने बचपन में कहीं ना कहीं खेल के प्रति घर पे, अपने मोहल्ले में, स्कूल में कहीं ना कहीं खेल काफी खेला होगा. बट ऐसा अभी हालत नहीं है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि जो नए पीढ़ी आ रही है वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं. वो घर जाते हैं तो टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठ के काम करना लगते हैं, एंटरटेनमेंट करना लगते हैं. तो वो फिजिकल एक्टिविटी कभी होती ही नहीं है. स्कूलों में भी काफी कम ऐसे प्रदेश है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में एक फोकस किया जा रहा है. I know that Madhya Pradesh is one of the states in the forefront for physical activity, sport, for happiness, but not many states are even doing it. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर अल्फाबेट्स वर्ड्स एक सीक्वेंस होता तो उसको हम अल्फाबेटिकल लिटरेसी कहें. नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एक सीक्वेंस होता तो हम उसको न्यूमेरिकल लिटरेसी कहें. तो क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग एक सीक्वेंस होता अगर हम उसको फिजिकल लिटरेसी कहें. तो पिछले 30-40 सालों में हम अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल लिटरेसी में हमारे देश ने बढ़ा है, बट फिजिकल लिटरेसी में हमारा देश कम होते जा रहे हैं. इसका वजह से आज हेल्थ, लाइफस्टाइल डिसीजेस ये सभी तो आपको पता ही है, बट इसे हमें आज रोकने की बहुत आवश्यकता है. तो मैं जब वो बच्ची को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं चैंपियन 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 करके ही सोच रहा हूँ, मगर अगर एक चैंपियन बनता है तो उसके वजह से अगर 9 लोग डिमोरलाइज होते हैं तो ऐसे कंपटीशन का क्या फायदा. तो ऐसा मुझे धीरे धीरे उसको लेके जाते मैंने ऐसा सोचा कि अगर मेरे स्कूल में, मैंने रिफ्लेक्ट किया अपने स्कूल में, मैं क्रिकेट में भी स्कूल के लिए खेलता रहा, बास्केटबॉल के लिए भी, बैडमिंटन के लिए भी, रनिंग के लिए भी. मुझे ऐसे लगा कि हम लोग 50 लोग थे क्लास में, 5 लोग सारे स्पोर्ट खेलते थे और कोई टीम 10 लोग का चाहिए तो बाकी 5 लोग को ऐसी जबरदस्ती रखते थे, बट खेलते हम 5 ही लोग थे. तो पूरा क्लास निराश होता था जब फिजिकल एजुकेशन की क्लास होता था. तो मुझसे ऐसा लगा कि हमें कोई एक शिफ्ट करने चाहिए. देयर नीड्स टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पीई.
because physical exercise, physical activity, physical education जो class है, it has to have a lot more positive experience. क्योंकि जो आदमी जीतता है, और मुझे ऐसा फिर वो मैं रिलेट करने लगा स्पोर्ट में, कि जो आदमी जीतता है वो खुशी खुशी घर जाता है, वो सब लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं ज्यादा खेलने के लिए. बट जो आदमी हार के घर जाता है उसको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है. तो हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी को इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में एक बुरी एक्सपीरियंस हुई है. जैसे मैं अपने आप में सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री इसमें बहुत प्रॉब्लम करता था क्योंकि बचपन में बहुत सारा टाइम मैं स्कूल से बाहर टूर्नामेंट्स खेलने जाता था, और वापस मैं जब आता था मुझे वो चीज समझ में नहीं आती थी, और टीचर लोग मुझे बाहर भेजते थे कि यार तू बाहर चल, तुझे तो कुछ समझ नहीं आया. और आज भी जब कोई बोलता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉर्मूलाज, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे बाप, ये मुझे नहीं चाहिए. तो जो बचपन के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग सही नहीं करेंगे तो जिंदगी भर उसका उसका जो दागा है, दाग है, वो जिंदगी भर रह जाएगा. सो मैं ये मानता हूँ कि physical education teaching should not only look at the top cream of the class, but the experience of each and everyone in the class. And that is very, very important. That's the shift which I'm talking about, because it's much beyond medals. Because today we know for a fact that physical activity enhances neurons. It's scientifically proven that the only way to develop neurons is by physical activity. If you play, if you are active, then you will definitely get better. This is also something which has been proven. Now it's up to us that not only the physical education teacher, but the entire department, the entire school should start looking at physical activity for every kid, not only for winning medals, but also to enhance academic performance, to enhance life skills. Which other activity teaches about failure other than sport? Which other activity teaches about equality other than sport? So for these reasons, it's very, very important that we take physical education to another level. I won't take much of your time, but I will only say these words which Margaret had mentioned in our previous webinar, that we've been extras for too long. I think physical education has to take a much more primary role, especially in our society where opportunities and experiences, good experiences are very scarce. I think it's very important that schools, the education department, take a much more interest in physical activity and physical education. It is time to make the physical education teacher more important. It's time for the physical education teacher to think and believe that the physical education subject is a very important subject. It's a subject which is not only going to help them get better marks, but it is also get us a healthier person for the rest of his life. The seeds of physical activity are born in the physical education teacher. So the physical education teacher to sow them in such a way that this person is continuing to do physical activity in life. The seeds are sown in such a way that the person's experience ensures that for the rest of their life, they're continuing to do physical activity. And that is what health, happiness, togetherness, equality, all of these things come by. I think it's a great platform. I think I shouldn't be saying anything more, because unless you all believed in this concept, unless the department believed, unless the government believed, you wouldn't have in these times thought about a training program like this. I would only say there definitely needs to be a shift. We need to look at beyond medals. We need to look at it beyond medals. We need to start valuing each and every child. It's not the top performers alone, but think of it that it is what is the experience of the last in class get.
जो आदमी रनिंग में लास्ट आता है, जो आदमी स्पोर्ट में लास्ट आता है, उसको अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस हम दे सके तो ये जरूर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा. दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for all of you. I wish you all the very best. I hope that this initiative can grow and we take this whole journey forward. I think physical literacy is a larger umbrella which we talk about. Physical education and physical education teachers are very, very big components on it. Physical literacy as a component and an umbrella is spoken about as activity which we do for life, and the seeds of which come in early childhood through physical education. So I think it's something which is very important, which you all are doing for our nation, for our children. I think this is very, very important cause. I will only say this. Thank you very much for the warm words, and also the Madhya Pradesh government for initiating this wonderfully. Thank you very much. Precise, sir. वो शायद चले गए हैं. Thank you, Gopi sir. So just we thank you, Amit. 1 or 2 minutes. गोपी सर हमारे लिए मार्गदर्शक रहे हैं फिजिकल लिटरेसी इनिशिएटिव को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए. just थैंक यू एवरीवन. मैं मैम से ही बात कर रहा था, उनका शायद कनेक्शंस बीच में ब्रेक हो गया, तो उनका वेट करेंगे 1-2 मिनट के लिए. इन बिटवीन हमारे साथ जब फिजिकल एजुकेशन हम प्रोग्राम बना रहे थे तो 2 लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया, डॉक्टर अश्विनी कुमार दत्ता और डॉक्टर डबास. तो मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि अगर वो कुछ शब्द कहना चाहें. वो दोनों ही LNIP ग्वालियर से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और मध्य प्रदेश उनकी कर्म भूमि रही है. तो उनसे मैं दरखास्त करूंगा, दत्ता सर से, डबास सर से, कि इतने में मैडम को एक बार दोबारा चेक करता हूँ लाइन पे आ जाए. आप लोग अगर अपने विचार रखना चाहें, मध्य प्रदेश में आपने इस फील्ड में बहुत काम किया है. दत्ता सर और डबास सर. Datta sir, you joined, Datta sir? डबास सर, अगर आप सुन सकते हैं तो आप भी शुरू कर सकते हैं. Can you hear me?
Yes, yes, Dabasa, now we can hear you. Please, sir, go ahead. Yes, I'm sorry. I had an appointment with a doctor and I have to rush. I just sent you the message that 1 o'clock I have to be with the doctor. Anyway, this is a बहुत एक अच्छा initiative है ये ELMS Foundation का, and our main torch bearer is Mr. Gopi Chand and you. Though me and Dr. Datta will be helping you out, giving some ideas and some experiences. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही इतने सालों से. हम फिजिकल एजुकेशनिस्ट बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको किस प्रकार से, हालांकि शारीरिक शिक्षा को कंपलसरी करने का कई बार प्रयास किया गया और पेपर्स पे वो है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली क्या हो रहा है वो शायद ELMS जो है वो करने वाला है गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर और एक नई कंसेप्ट के साथ. जैसे कि हम कहते हैं कि एक टीचर को इस प्रकार से अपना जो मटेरियल है, जो टीचिंग स्टफ है, वो इस प्रकार से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे के सामने भोजन देती है, उसके टेस्ट का बनाकर, उसके इंटरेस्ट का बनाकर उसको परोसती है, तब बच्चा उस भोजन को करता है. और हम शारीरिक शिक्षकों को भी एक्टिविटीज जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, या फिर स्कूलों में क्या होता है कि स्पोर्ट्स का पीरियड है और टीचर ने कहा बेटे चलो बॉल ले लो खेल लो, जैसे गोपी सर ने कहा कि बच्चों को ये नहीं पता कि बॉल कैसे पकड़ना है, हाउ टू कैच, हाउ टू थ्रो, है ना, कैसे गिरे भी तो कैसे करें कि चोट ना लगे, हाउ टू बियर द इम्पैक्ट, क्लाइंबिंग है, हॉपिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, ये सारी बेसिक स्किल्स जो है बच्चों में अगर हम शुरू में ही डेवलप करें तो आगे चलकर चैंपियन बहुत आएंगे. वाइडर द बेस हायर द एपेक्स. हर बच्चे को शारीरिक शिक्षा या फिजिकल लिटरेसी मिलनी चाहिए, वो कंपलसरी होनी चाहिए और एक नए फ्लेवर में होनी चाहिए, जो ELMS करने जा रहा है. एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं इस काम से आपने मेरे को जोड़ा है और आई होप आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट ए लॉट इन दिस. और ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के शारीरिक शिक्षक आपसे जुड़े हैं और स्पोर्ट्स के में हालांकि स्कूल शिक्षा में काफ़ी अच्छा है मध्य प्रदेश, लेकिन एलिट स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं है. एक आध इधर उधर से स्पोर्ट्समैन आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. आई विश यू गुड लक, प्लीज कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. धन्यवाद डबास सर, धन्यवाद. आई विल बी ज्वाइनिंग ऑल 5 days. आई एम सॉरी आई एम लीविंग टुडे अर्ली. नहीं सर, थैंक यू. तो आप सर और भी सहयोग लेंगे, आपको सेशंस भी देने पड़ेंगे फिर सबको. ठीक है. और मैं बल्कि सिंस आई एम नाउ इट इज फुल्ली डिवोटेड टू पैरा स्पोर्ट्स एंड पैरा स्विमिंग इन पर्टिकुलर, मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा फिजिकल लिटरेसी का प्रोग्राम है उसमें हम कुछ ऐसी ड्रिल्स, ऐसी चीजें, एक्टिविटीज भी रखें जो फिजिकल चैलेंज भी बच्चों के लिए भी हो, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई, हर स्कूल में एक आध बच्चा इस प्रकार, नोबडी शुड बी लेफ्ट आउट, है ना. हाउ टू मॉडिफाई, उसके लिए इनोवेट कैसे करें, मॉडिफाई कैसे करें ड्रिल को, एक्सरसाइज को, है ना. तो जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू डबास सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. नमस्कार. परसाई सर, आप वापस ज्वाइन कर चुके हैं क्या? हम आपका हम शायद मैम और परसाई सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकल रीजन से, तो मैं अपनी कोलीग एल्फिया को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आज का सेशन अभी शुरू करेंगे. एल्फिया, आप को मैं होस्ट बना रहा हूँ. एल्फिया, आप सब जानकारी के लिए हमारी टीम बहुत ही सीनियर प्रोफेसर दत्ता सर, डबा सर और बाकी लोगों से गाइडेंस लेकर हम लोगों ने अपने एक, जो सर ने बड़ा अच्छा कि बच्चे को उसकी तरीके से हमें खाना परोसना चाहिए, वैसा ही एक प्रयास हम लोग करेंगे अगले 5 दिन. इसमें अलग अलग विषयों पर बात करेंगे.
जो फिजिकल लिटरेसी टर्म है इसका जरूरत क्या था, या फिजिकल एजुकेशन से ही बिल्कुल रिलेटेड टर्म है, उसके बारे में हम समझेंगे और एक चाइल्ड सेंट्रिक पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे, क्योंकि फिजिकल लिटरेसी ऐसा प्रमोट करता है कि वो हर बच्चे को उसके नेचुरल इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसको लाइफ लॉन्ग जर्नी का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा विषय भी हम टच करेंगे कि जीवन विद्या का कंसेप्ट फिजिकल एजुकेशन क्लास में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक सेशन हम रखेंगे एक्टिविटीज एट होम का भी, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग घर पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनको घर पे कैसे एक्टिव रखना है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपका जो एससीईआरटी का करिकुलम है, एनसीईआरटी करिकुलम है, बारे में भी थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन की बात करेंगे। तो आज का अल्फिया भी शुरू करेंगी। शी इज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बाय क्वालिफिकेशन और उन्होंने बैचलर किया फिजियोथेरेपी में। वो अभी लीड करेंगे आज का सेशन। अल्फिया रेडी? यस सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो थैंक यू अमित सर उस इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज का सेशन है अंडरस्टैंडिंग टर्म्स रिलेटेड टू आवर फील्ड। जैसे आज हमारे साथ जो सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं वो फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ है, तो और वो ही फील्ड में काफी सालों से एक्सपीरियंस्ड भी है, तो काफी हद तक आप लोगों के लिए ये टर्म्स रिकैप होंगे। बट इस सेशन का मूल्य उद्देश्य ये है कि हम यूनिवर्सली दिए गए परिभाषा, जो फंडामेंटल टर्म्स की परिभाषा है, उनको जानेंगे सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरे जो सारे पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो ये सारे क्वेश्चंस आंसर करें। पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी लॉकडाउन करती हूँ कि वो चैट बॉक्स जाए और इस सवाल का आंसर दे कि आपका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कौन सा है। योगा, ओके, योगा एंड मेडिटेशन। तो काफी लोगों ने योगा ही अब तक बताया है, योगा एक्सरसाइज। बैडमिंटन, घर के छत में एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट्स, एरोबिक। ठीक है। वॉकिंग, पीटी, होम वर्कआउट, ये सारे हमें डिफरेंट आंसर्स मिले आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप आपके स्कूल डेज पे जा सकते हो, अपने मेमोरी को थोड़ा पास्ट में ले जा सकते हो और सोच सकते हो कि आपका फिजिकल एजुकेशन क्लास का बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, तो आप प्लीज वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। योगा, सूर्य नमस्कार। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा रहा है? फुटबॉल, ठीक है, चेस, वॉलीबॉल, स्विमिंग, कबड्डी, बैडमिंटन। ओके, काफी हद तक बहुत वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स के नेम आ रहे, जैसे नेटबॉल, हॉकी, खो खो, हैंडबॉल।
नेक्स्ट सवाल, आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा रहा है? जैसे मुझे स्क्वाट करना अच्छा लगता है, तो आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा है? स्क्वाट्स, जंपिंग, रनिंग, कबड्डी, पुशअप, सूर्य नमस्कारा, स्ट्रेचिंग, जंपिंग जैक, योगा, रनिंग। ओके, हमें बहुत तरीके के रिप्लाईज मिले हैं अभी, तो इससे काफी हद तक ये क्लियर है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग टर्म्स को रिलेटेड है वो कुछ हद तक बहुत ज्यादा क्लियर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये जो फंडामेंटल की टर्म्स है इनकी परिभाषा जानेंगे, जो कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज, सेडेंटरी बिहेवियर, स्कूल स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन है। सेशन लेने से पहले मैं आपको बताऊंगी मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आप चाहोगे कि मैं वो ज्यादा एक्सप्लेन करूं या ज्यादा डिटेल में जाके हम उसको समझे, तो चैट बॉक्स में जाइए और प्लीज बताइएगा कि आपको ये स्पेसिफिक चीज नहीं समझ आई या इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की दरख्वास्त है, ठीक है? जो हमारा लर्निंग अप्रोच होगा इस सेशन के दौरान वो ये होगा कि हम पहले इन सारे फंडामेंटल टर्म्स के परिभाषा जो यूनिवर्सली दिए गए हैं उनको देखेंगे, जानेंगे और अप्लाई करेंगे छोटे छोटे टास्क करने के लिए, और काफी हद तक उदाहरण भी दिएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस टर्म्स को लेकर बहुत क्लियर हो और एक ही लेवल पे हो। तो हमारा फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने कहा, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि। डेफिनेशन के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल दैट रिक्वायर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कोई शारीरिक गतिविधि जो हम करते हैं अपने शरीर के मूवमेंट्स को यूज करके, जिसमें हमारी शरीर की स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और उसको करते दौरान हमारे शरीर की शक्ति का एक्सपेंडिचर यानी यूज होता है। अब अगर हम देखने जाए तो ये एक्टिविटीज हमारे रोजाना लाइफ में बहुत तरीके के होते हैं। इनको सिंप्लीफाइड और इजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने इनको 7 कैटेगरी में बांट लिया है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे काम से जुड़े हुए फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे किसान का हल चलाना या मजदूर जब सामान ए पॉइंट से बी पॉइंट को ले जाता है, वो होंगे हमारे काम रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी। ट्रैवल रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी वो है जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट को ट्रैवल करते हैं, यानी सफर करते हैं। तो 2 तरीके से करते हैं, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव वो होता है जब हम अपने शरीर यानी बॉडी को यूज करके मूवमेंट प्रोड्यूस करके एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, तभी हम जब ट्रैवल करते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उदाहरण होता है फिजिकल एक्टिविटी का। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, यानी गाड़ी में बैठ के सफर करना या बैठ के गाड़ी चलाना, बस में पैसेंजर्स बन के बैठना, ये सारे उदाहरण है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं रखता है हमें। घरेलू काम के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जैसे सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन साफ करना, पकाना। इन सारे कामों के दौरान भी हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रिक्रिएशन एक और कैटेगरी है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, यानी हमारे जब दिन के पूरे समय में हमारा जो
नॉर्मल रूटीन काम होता है, उसके अलावा जब हमें हमारे लिए कुछ लीजर आवर्स मिलते हैं जिसमें हम हमारे मनपसंद कार्य करना पसंद करते हैं, उस दौरान जब हम कोई एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं जिससे हमें फिजिकली एक्टिव रहे, जैसे अपने पेट्स के साथ खेलना, अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने फैमिली के साथ कोई गेम खेलना। और फिर दूसरा कैटेगरी है स्पोर्ट्स, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी एक तरीके का फिजिकल एक्टिविटी है। एक्सरसाइज भी एक तरीके का फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें हम डेडिकेटेडली अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। केयर यानी अपने शरीर का ख्याल रखना, स्नान करना, इस दौरान भी हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं और उसको हम करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं और उसको करने द्वारा हमारे शरीर की शक्ति का उपयोग होता है और एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर होता है। तो अभी हमने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी कई तरह के होते हैं। कुछ करने दौरान हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है कम, कुछ करने दौरान होती है मॉडरेट और कुछ करने दौरान होती है विगरस। तो उन्हीं के अनुसार एक्टिविटीज की इंटेंसिटी बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया कि लाइट फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी और विगरस फिजिकल एक्टिविटी। लाइट फिजिकल एक्टिविटी वो होते हैं जिन्हें करने दौरान हमारी हार्ट बीट ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, हमें बहुत पसीना नहीं आता है और हमारी रेस्पिरेशन रेट, जो हमारे सांस लेने की स्पीड होती है, वो भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट वाला है मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी यानी मध्यम इंटेंसिटी का फिजिकल एक्टिविटी। उसको करते दौरान हमारी हार्ट रेट मॉडरेटली इंक्रीज होती है, स्वेटिंग भी लगभग कुछ हद तक होती है और रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। विगरस यानी जोरदार इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी वो है जिसको करते दौरान हमारी हार्ट रेट बहुत इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग और ज्यादा रेस्पिरेशन रेट भी होता है। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों को देखने जाए तो ये गतिविधि यूनिवर्सली गाइडलाइंस द्वारा हमें दिए गए हैं। ये गाइडलाइंस बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है और बुजुर्ग के लिए अलग है। सिंस हम पीईटी टीचर्स हैं और हम बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारा समय बिताते हैं और उन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो हम हमारी फोकस ऑफ इंटरेस्ट सीमित रखेंगे बच्चों तक। एडल्ट और बुजुर्ग का जो गाइडलाइंस होता है उसको टच नहीं करेंगे और डिस्कस नहीं करेंगे। तो शारीरिक गतिविधि गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रंस के अनुसार ये कहा जाता है कि हर बच्चे को एटलीस्ट 60 मिनट मॉडरेट मध्यम इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी रोजाना करना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट यानी एटलीस्ट इसलिए बताया गया है कि अगर उससे कहीं ज्यादा किया कोई बच्चा तो उसके सेहत के लिए वो हानिकारक नहीं है, उसके बेनिफिट्स हैं, बट उससे कम 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। सिंस हम बच्चों को फिजिकली एक्टिव खेल दौरान रखते हैं तो हम अभी जानेंगे कि किस टाइप के खेल होते हैं, किस किस किस्म के खेल होते हैं। खेल को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, सेमी स्ट्रक्चर्ड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले। इन तीनों में ये अंतर है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्ले वो होता है जिसमें बच्चा फ्रीली मूव करता है, काफी सारी बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वेरी लेस स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट को ऐसे जाना है, या कोई खेल जैसे फुटबॉल हो या कबड्डी हो या खो खो हो जिसमें सेट रूल्स दिए गए हैं, वैसे कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं।
अनस्ट्रक्चर्ड प्ले बेसिकली फ्री प्ले होता है, जिसमें बच्चे को फ्रीडम मिलता है कि वो अपने बॉडी को किसी भी तरह मूव करे और फिजिकली एक्टिव रहने का गोल अचीव करे। सेमी स्ट्रक्चर्ड प्ले कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है। यहाँ पे बच्चों को कुछ हद तक फ्रीडम दी जाती है कि आप रूल्स ब्रेक कर सकते हैं या पार्शियली रूल्स फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्री प्ले भी कर सकते हैं। तो कुछ हद तक बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है कि वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ खेलें। स्ट्रक्चर्ड प्ले वो होता है जिसमें एक परफेक्ट रूल्स दिया गया हुआ है कि इस गेम या इस स्पोर्ट को किस तरीके से खेलना चाहिए और ये सारे रूल्स जो रूल बुक में दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था। जैसे मैंने बोला, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले एनी ओपन enabled play where no specific learning objective is there। बस इसमें कोई स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। चिल्ड्रन को फ्रीडम दिया जाता है कि वो फ्रीली अपने बॉडी को मूव करे और इसमें एडल्ट का काफी कम रोल होता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर एंड लर्न पे ज्यादा फोकस रहता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड प्ले वो है जिसमें गाइडलाइंस हम कुछ हद तक एज एन एडल्ट देते हैं, बट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नैरोली हम लोग उनको कन्फाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लोर, एंगेज एंड लर्न विद मिनिमल इंस्ट्रक्शंस होता है। स्ट्रक्चर्ड प्ले ये होता है जब एक एक्टिविटी का एक सेट रूल्स के साथ विद अ गोल किया जाता है। तो जैसे हमने अभी देखा अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है और स्ट्रक्चर्ड क्या है। हम अभी रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, जैसे मैंने बताया था सेशन में कि पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसको एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे टास्क के थ्रू और देखेंगे कि हमारी समझ इस कॉन्सेप्ट को लेके कहाँ तक पहुंची है। तो अभी हम करेंगे चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त करती हूँ कि जब कोई सेंटेंस पढ़े वो बताएं कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड कहते हो तो यूएस लिख सकते हो चैट बॉक्स में, सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी एसएस, स्ट्रक्चर्ड यानी एस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अपने सिबलिंग्स भाई बहनों के साथ खेलना, क्या ये अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड है? अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब तक हमें जितने भी सारे चैट बॉक्स में कमेंट्स आए वो सारे सहमत थे कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। प्लेइंग अ गेम विद रूल्स, एक गेम रूल्स के साथ खेलना जब पीटी टीचर क्लास में एब्सेंट हो, तो ये किसके अंदर आता है? ये किस किस्म का प्ले है? अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड? अब तक के जितने मुझे रिप्लाईज मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। जी हाँ, ये दोनों ही साइड में हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम खेल मतलब सेमी रूल्स फॉर्म करता है और वहां से वो टेक ओवर करता है, तो वो होगा मोर अबाउट योर स्ट्रक्चर्ड। और सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी हर स्टूडेंट एक ही साथ रूल्स को एग्री करके अगर आगे बढ़े तो वो होगा आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया गया है कुछ रूल्स को ब्रेक करने का या मोल्ड करने का अपने अनुसार। प्लेइंग इन कम्युनिटी, फॉर्मिंग योर ओन रूल्स, जैसे हम गली क्रिकेट खेलते हैं, सारे बच्चे मोहल्ले के एक साथ इकट्ठा होके जब हम कोई गेम अपने मोहल्ले में खेलते हैं अपने ओन रूल्स बना के, तो वो किस किस्म का खेल होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? जी हाँ, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। नेक्स्ट वाला, अपने पेट के साथ खेलना, कुत्ता बिल्ली जो हमारे घर में पालतू जानवर रहता है उसके साथ समय बिताना और खेलना, ये भी तो एक टाइप का शारीरिक गतिविधि है, फिजिकल एक्टिविटी। तो ये किस टाइप का है?
अनस्ट्रक्चर्ड, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड कहा है, मगर आई थिंक मुझे 2 रिप्लाई मिले जिन्होंने सेमी स्ट्रक्चर्ड कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले स्टेटमेंट पे, गोइंग फॉर अ वॉक, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, गोइंग फॉर द वॉक अकॉर्डिंगली वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या फिर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो होता है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर ये गोइंग फॉर अ वॉक मैं रोजाना करती हूँ शाम के समय लगभग 30 मिनट के लिए, तब वो होगा मेरा स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड। अगर मैं कभी उसमें ब्रिस्क वॉकिंग इन्वॉल्व करूं या स्विच करूं ब्रिस्क वॉकिंग और नॉर्मल वॉकिंग के बीच, मगर जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक वो हो सकता है आज मुझे सामान सब्जी कुछ लेने जाना हो तब मैं वॉक करके जाऊंगी, या पैदल जब जाऊंगी, दैट विल बी मोर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड। आई होप हमारी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त सब एक ही लेवल पे और काफी हद तक हम क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि क्या आप मानते हैं कि डांस एक फॉर्म ऑफ शारीरिक गतिविधि है? क्या हम डांस को अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बता सकते हैं? यस, यस, जी हाँ, डांस एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ही है, और ये डांस जो फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है इसके इंटेंसिटी अनुसार ये वेरी भी होगा। किसी को डांस करना बहुत इजी लगेगा और जो हम इंटेंसिटी पेस फॉलो करें उसके अनुसार लाइट लगेगा। अगर वो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन मतलब लगभग 30 से 20 मिनट तक करे तो वो हमें मॉडरेट लगेगा, या उससे ज्यादा करे तो हमें विगरस भी लग सकता है, और हमारी हार्ट रेट, स्वेटिंग और रेस्पिरेशन रेट भी इसको करने दौरान बढ़ती है। तो अभी आपसे ये टास्क जो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 शख्सियत की पोर्ट्रेट है, गिरीश, पूजा, राहुल और माया। उनके आगे उनका दिन का कोर्स, यानी वो दिन शुरुआत सूरज यानी शुरू से रात, चांद यानी जो चांद वाला डिपिक्ट किया है यानी रात, शुरू से मतलब सुबह से रात तक जो सारे कार्य करते दिन में वो दिखाया गया हुआ है। आप सब पार्टिसिपेंट से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो 30 सेकेंड्स ले, स्लाइड को देखें और बताएं इनमें से सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव कौन है और क्यों है। जी हाँ, आपने सही बताया कि गिरीश है। राहुल, आई डोंट एग्री। काफी हद तक हमें एक ही ऑप्शन यानी एक ही शख्सियत बताया जा रहा है, गिरीश। तो आगे बढ़ते डिस्कस करते हैं। हम माया को तो देख के बता ही सकते हैं कि माया की जो डे टू डे रूटीन है वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो इस लिस्ट से माया को हटाते हैं, जाते हैं गिरीश, पूजा और राहुल के, इन तीनों के। अगर हम देखने जाए तो गिरीश के उसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो शाम में ऑफिस के बाद घर को साइकिलिंग करके जाता है। पूजा सुबह में एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है, और राहुल शाम में खेलता है। इन तीनों को देखने जाए तो सेम लेवल पे, मगर उसके अलावा गिरीश ज्यादा से ज्यादा समय तक फिजिकली एक्टिव शारीरिक गतिविधि में इन्वॉल्व रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो खड़ा रहता है, चलता है, अपना सेल्फ केयर भी जब करता है तो वो एक्टिव रहता है। फोन में भी जब बातें करता है तो एक्टिवली मूविंग होके बातें करता है। तो अगर हम देखने जाए तो गिरीश ज्यादा फिजिकली एक्टिव है ओवर द नॉर्मल नॉर्म्स। एडल्ट्स की गाइडलाइंस फिजिकल एक्टिविटी का ये कहते हैं कि हर एडल्ट को रोजाना 30 मिनट्स के लिए
मॉडरेट यानी माध्यम इंटेंसिटी और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। जो ग्रीन वाला जोन है वो दिखा रहा है कि मॉडरेट विगरस इंटेंसिटी अचीव है, उसके अबाव उससे ज्यादा एक्टिव गिरीश है, इसलिए गिरीश इन सब में से सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल टर्म एक्सरसाइज यानी व्यायाम है। एक्सरसाइज डेफिनेशन के अनुसार इज अ सबसेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड डिफाइंड एज प्लान्ड and repetitive body movement done to improve or maintain one or more components of physical fitness. Definition के अनुसार एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का एक छोटा पार्ट है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं तो वो जो ब्लू सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो हमारे दिन के सारे एक्टिविटीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो क्लस्टर को डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसी का एक छोटा हिस्सा एक्सरसाइज है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि जो हम करते हैं वो प्लान्ड हो, उसका एक करने का तरीका हमने सोचा है कि आज मुझे रोजाना इतने मिनट के लिए एक प्लान स्ट्रक्चर्ड हो, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो जो हमें एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर लाए, और उसको करने के लिए हमारे शरीर के लार्ज यानी बड़े मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसको करने के पीछे कोई मकसद होता है, जैसे कि मुझे वेट रिड्यूस करना, मुझे मेरी एजिलिटी इंप्रूव करना, एंड्योरेंस इंप्रूव करना, स्ट्रेंथ इंप्रूव करना, पावर इंप्रूव करना या फिर स्पीड इंप्रूव करना। उसके पीछे एक गोल या सोल पर्पस होता है। उसी के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं जो कि फिट प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि हमें कितने फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन आई हैव टू डू इट, किस पेस पे यानी किस इंटेंसिटी के साथ मुझे करना चाहिए, कितने समय के लिए, 30 मिनट के लगभग या फिर 1 घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए, और किस टाइप का। सो हमारे गोल के अनुसार हमारी फिट प्रिंसिपल फॉर्म होंगी और वो एक प्लान्ड अप्रोच रहेगा। तो एनी फिजिकल एक्टिविटी जो फिट्स प्रिंसिपल को फॉलो करे और बेस्ड ऑन द गोल्स रिक्वायर्ड, देन दैट बिकम्स एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का उदाहरण देखते हैं। जब हम एक्सरसाइज सुनते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जहन में आता है बड़े जिम, फैंसी इक्विपमेंट, बहुत सारा स्पेस। जी हाँ, बड़ों के लिए काफी हद तक जिम एक्सरसाइजेस इज अ गुड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टू इम्प्रूव, बट जब हम बच्चों के बारे में, सिंस हम पीईटी टीचर्स हैं, हम बच्चों के साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, उनको पॉजिटिव फील कराते हैं, तो बच्चों के लिए एक्सरसाइज वो होता है जो उनके बॉडी वेट को यूज कर ही किया जाए। कुछ हद तक एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज इंक्रीज हो जाए या बढ़े, जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन करे तब वो वेट्स पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मगर मजा आए, उनको फुल ऑन एंगेजमेंट, इंकरेजमेंट, एंजॉयमेंट मिले और वो वापस वो करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहे। कुछ उदाहरण आपके स्क्रीन पे हैं, जैसे हुला हुप करना, पैर पे चढ़ना, लटकना, कोई भी पसंद के उनके स्पोर्ट्स खेलना, टग ऑफ वॉर यानी सारे बच्चे मिलके एक गेम खेलना, रस्सी कूदना, पुशअप करना, साइकिलिंग जो कि बहुत सारे बच्चों को पसंद है और स्कूल को भी जब सफर करे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व करना, या लटकना। तो अभी आपसे एक और सवाल, जैसे आप लोगों ने सभी बताया कि डांस एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो क्या आप मानते हो कि डांस एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है? पार्टिसिपेंट्स, मैं आपसे यस यस यस, जी हाँ, आप सभी ने सही कहा। डांस एक एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है क्योंकि एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का सबसेट है, और द बेस्ट एग्जांपल डांस को एक्सरसाइज कहने का है कि जुम्बा डांस, एरोबिक्स जो हम करते हैं,
या मास ड्रिल में जब हम पीटी कराते हैं वो भी जब हम बीट्स के साथ करें तो वो भी एक फॉर्म ऑफ डांस ही हो सकता है। तो डांस कैन बी सेड एज एन एक्सरसाइज। अब तक हमने देखा फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि और एक्सरसाइज यानी व्यायाम क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। अभी हम जानते हैं इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज और अंतर है। इन दोनों को करने के दौरान हमारी बॉडी यानी हम अपना शरीर का एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं और दोनों को करने की होती है। इन दोनों में मेन ये डिफरेंस है, अंतर है कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो अनप्लैन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज सब्जी खत्म हुआ, मैं मार्केट गई सब्जी लाने के लिए, दिस वाज अ अनप्लैन्ड इवेंट। मेरे घर मेरे दादा दादी आए, मैं उनके साथ थोड़ा खेले, दैट वाज एन अनप्लैन्ड इवेंट। वेयर एज एक्सरसाइज यानी व्यायाम ज्यादा से ज्यादा प्लान्ड, सिस्टमैटिक और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है। यानी हम उसको करने से पहले एक पर्टिकुलर प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके या किस दिशा में उसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो। अनप्लान्ड एक्टिविटी का एक और बेस्ट उदाहरण है कि सडनली जब आप मॉल में जाओ तो मॉल में आप एक शॉप से दूसरे शॉप को घूमते हो, तो ये भी एक अनप्लान्ड मूवमेंट होता है। बट इनको करने दौरान यानी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को करने के दौरान हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है और दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स है, मगर एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिकल एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल टर्म है फिजिकल इनएक्टिविटी। तो जैसे डेफिनेशन के अनुसार मैंने कहा था, फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस दिए गए हैं जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्ग के लिए होते हैं। बच्चों के लिए रोजाना एटलीस्ट 60 मिनट्स माध्यम इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। बड़ों के लिए रोजाना 30 मिनट्स माध्यम इंटेंसिटी, और बुजुर्ग के लिए हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि बुजुर्ग की जो एक्सरसाइज गाइडलाइंस होती है, फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस होती है, वो वेरी करती है उनके अंडरलाइंग डिजीज पे। अगर कोई बुजुर्ग को डायबिटीज हो तो उसकी गाइडलाइंस अलग हो, अगर कोई बीपी हो तो गाइडलाइंस अलग होती है, या हार्ट बीमारी हो तो उसकी गाइडलाइंस अलग होती है। तो हम अभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चे और एडल्ट को, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल शख्सियत ये गाइडलाइंस नहीं मीट करता है जो उनके पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया है, फिर वो फिजिकली इनएक्टिव कैटेगरी में जाता है। An individual who does not meet the recommended physical activity criteria is considered to be physically inactive. जैसे आप देख सकते हैं, बड़ों के लिए रोजाना 30 मिनट्स ऑफ माध्यम इंटेंसिटी, अगर बढ़े ये इंटेंसिटी विद इतने मिनट्स नहीं मीट करते, मिनिमम कम से कम इतना, इससे ज्यादा करने से कोई शरीर को हानिकारक नहीं होगा, मगर कम से कम अगर इतना मीट नहीं करते तो वो फिजिकली इनएक्टिव है। उसी प्रकार हर बच्चा अगर मिनिमम कम से कम यानी 60 मिनट 7 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी माध्यम इंटेंसिटी का रोजाना नहीं मीट करता है तो वो फिजिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। ये डेफिनेशन के अनुसार है। तो काफी बार हमें लगता है कि हम फिजिकली एक्टिव हैं, बट रोजाना में हम बैठे रहते हैं ज्यादा और थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि बैठे रह के मूव करना विल मेक मी फिजिकली एक्टिव। नहीं, ये हम सबकी गलतफहमी है। तो इसी के साथ हम अभी हमारा नेक्स्ट टर्म लेते हैं जो कि सेडेंटरी बिहेवियर है, गतिहीन व्यवहार, बैठे रह के कार्य करना। तो सेडेंटरी बिहेवियर का परिभाषा यानी यूनिवर्सल डेफिनेशन ये है कि एनी वेकिंग बिहेवियर characterized by energy expenditure of less than 1.5 minutes while in seating, reclining or lying position। यानी हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि फिजिकल एक्टिविटी को समझते वक्त कि कम, माध्यम और अधिक फिजिकल एक्टिविटी के कैटेगरीज होते हैं।
अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी 1.5 मिनट से कम हो, यानी जब हम कोई कार्य करते हैं जैसे बैठे रहना या बैठ के कंप्यूटर के आगे बैठ के क्लास सुनना या बैठ के कोई गेम खेलना, ये सारे एक्टिविटीज जब हम करते हैं तब हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर 1.5 मिनट से कम होती है और वो गतिहीन व्यवहार कहलाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, गतिहीन व्यवहार के कुछ उदाहरण है बैठे रहना, बैठ के टीवी देखना या मोबाइल में गेम खेलना, बैठ के गाड़ी चलाना। मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल एक्टिविटी में आता है और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मोर और लेस सेडेंटरी बिहेवियर, गतिहीन व्यवहार में आता है। बैठ के किताबें पढ़ना, लिखना, क्लासरूम में बैठे रह के लेक्चर सुनना या कंप्यूटर इस्तेमाल करना या कंप्यूटर के आगे कोई काम करना, ये सारे कुछ उदाहरण है गतिहीन व्यवहार के। तो जब हमने शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी और व्यायाम देखा, हमने उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे। उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने दो सिमिलर टर्म्स देखे जो कि सेडेंटरी बिहेवियर और फिजिकल इनएक्टिविटी है। इन दोनों में डिफरेंसेस, अंतर ये है कि जो इंडिविजुअल गाइडलाइंस, फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस जो उसके एज स्पेसिफिक है, यानी बच्चों के स्पेसिफिक जो 60 मिनट का लगभग है या मिनिमम 60 मिनट और बड़ों का मिनिमम 60 मिनट माध्यम इंटेंसिटी का नहीं मीट करता, फिर वो फिजिकली इनएक्टिव है। वेरएज सेडेंटरी बिहेवियर वो कार्य है जिसको करते दौरान हम बैठे रहते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं या बैठ के कोई कार्य करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल फिजिकली एक्टिव हो लेकिन एट द सेम टाइम सेडेंटरी हो। जैसे आपने देखा गिरीश, माया, राहुल। माया का जो डे का पैटर्न था, वो सुबह जिम जाती है, एक्सरसाइज करती है और अपना क्राइटेरिया जो फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस का है मीट करती है, मगर सॉरी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। जो माया थी, हमने उसका रोजाना पैटर्न देखा था, कंप्लीट डे का पैटर्न। वो जिम जाके अपना फिजिकल एक्टिविटी क्राइटेरिया जो लगभग 30 मिनट्स है वो मीट करती है, बट दिन के पूरे समय वो बैठे रह के कार्य करती है, तो वो गतिहीन व्यवहार करती है। तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल फिजिकली एक्टिव रहने के अनुसार भी बिहेवियर एग्जिबिट कर सकता है। यह करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंटली उठ के छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हम वो लॉन्ग प्रोलॉन्ग सेटिंग जो पैटर्न होता है उसको ब्रेक करें और मैक्स टू मैक्स फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। ओके, अभी आप सबसे ये प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि हम इस वक्त सेडेंटरी है इस सेशन को सुनने के दौरान? काफी सारे जी अमित सर बताइए। काफी सारे यस हैं, वही बता रहा था बस आपको। ठीक है, शुक्रिया। तो अभी हम जब सेशन सुन रहे हैं तो हम बैठे ही हैं, उसी अनुसार क्या आपको लगता है
जब वो क्लास में बैठ के कोई लेक्चर सुनते हैं तो आपको लगता है वो सेडेंटरी बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है? एल्फिया, कुछ लोगों का ऐसा मैसेज आया है कि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तो फॉर द बेनिफिट आप रिपीट भी कर दो एक बार। कहाँ से उन लोग आप पूछ सकते हो क्या कहाँ से उन्होंने मिस किया है कि कहाँ से मैं दोहराए? ऐसा नहीं लिखा, बट करीब 1 मिनट पहले आया, तो आई थिंक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं दोबारा से। उनका आया है, साफ सुनाई नहीं दे रहा है, अभी आया। ठीक है, मैं एक क्विक रिकैप देती हूँ सेडेंटरी बिहेवियर जो हमने स्टार्ट किया था। गतिहीन व्यवहार हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल टर्म था। इसके अनुसार द डेफिनेशन अनुसार ये वो है एनी वेकिंग बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसको करने के दौरान हम जगे हुए तो रहते हैं बट उसको करने के दौरान हमारी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है वो 1.5 मिनट से कम होती है। इस दौरान हम एक्टिविटी लाइक सिटिंग, रिक्लाइनिंग या लाइंग पोजीशन, यानी सिटिंग बैठे रह के कोई कार्य करते हैं या लेटे रह के कोई कार्य करते हैं, मगर हम सोए नहीं रहते। दैट्स व्हाई द वर्ड वेकिंग बिहेवियर है। तो ये हमने वैसे भी पहले डिस्कस किया था कि फिजिकल एक्टिविटी कैटेगरी वाइज 3 टाइप के होते हैं, कम, माध्यम और अधिक टाइप इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कोई कार्य करने में 1.5 मिनट से कम हो, और वो आएगा आपका गतिहीन व्यवहार में, जो कि सेडेंटरी बिहेवियर है। मगर इस दौरान कोई व्यक्ति स्लीपिंग स्टेट में नहीं होता है बट बैठ के कार्य करता है। तो बैठे रह के कार्य करने के दौरान एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो कि 1.5 मिनट से भी कम। तो अब तक हमने ये डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने उदाहरण देखा कि गतिहीन व्यवहार का क्या सारे उदाहरण है हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे बैठ के टीवी देखना, बैठ के मोबाइल गेम खेलना, गाड़ी में जब हम सफर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल करते हैं पॉइंट ए या पॉइंट बी के साथ, तो मैंने बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव वाला जो होता है जिसमें आप गाड़ी में बैठे हो या बस में बैठे हो, वो आएगा आपका सेडेंटरी बिहेवियर के एग्जाम्पल में। और फिर बैठे रह के पढ़ना, लिखना या फिर कोई डेस्क रिलेटेड जॉब करना, यानी कंप्यूटर में काम करना या लैपटॉप के आगे काम करना, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेडेंटरी बिहेवियर रिलेटेड है। फिर हमने देखा कि सेडेंटरी बिहेवियर और फिजिकल इनएक्टिविटी में डिफरेंसेस क्या है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी वो है जो गाइडलाइंस दिया हुआ है फिजिकल एक्टिविटी का, जो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए है। अगर कोई इंडिविजुअल वो गाइडलाइंस नहीं मीट करता, फिर डेफिनेशन के अनुसार वो फिजिकली इनएक्टिव कैटेगरी में आता है। वेयर सेडेंटरी बिहेवियर वो है जो कार्य हम बैठ के या लेट के करते हैं और उसको करने के दौरान हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ही कम होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है वो दिन में फिजिकली एक्टिव भी रहे बट साथ ही साथ सेडेंटरी बिहेवियर भी एग्जिबिट करे। यानी हमने वो गिरीश, माया, राहुल और पूजा का जो टाइमलाइन देखा था, उनका जो दिन के जो कार्य करते सुबह से रात तक, उसमें माया का अगर आपको याद होगा, वो सुबह जिम जाती है, वर्कआउट करती है, मगर रोज फिर उसके बाद बहुत बैठ के कार्य करती है। उसका पैटर्न बहुत सेडेंटरी है। तो वो अपना फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस मीट करती है बट एट द सेम टाइम गतिहीन व्यवहार भी दिखाती है। तो द बेस्ट सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करें उसको ब्रेक करें और बहुत समय तक नहीं बैठे। उसके बाद हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त हम सेडेंटरी है, और नेक्स्ट वाला कि आपको लगता है कि बच्चे स्कूल में क्लास सुनते दौरान सेडेंटरी है। तो जिन लोगों ने मिस किया था या जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी, आई होप अब तक हम लोग सब एक ही लेवल पे है और अभी सब क्लियर हो गया। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल टर्म है जो हम इस फील्ड से, और हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट है, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा।
डेफिनेशन के अनुसार फिजिकल एजुकेशन वो है जो प्लान्ड प्रोग्रेसिव लर्निंग स्कूल करिकुलम अनुसार होता है, जो टाइम टेबल में 1 स्लॉट या 2 स्लॉट होता है और हर बच्चों को डिलीवर्ड होता है। यानी जो फिजिकल एजुकेशन क्लास में सिखाया जाता है वो कहीं टाइम पहले प्लानिंग होती है, एज पर बच्चों का एज, एज पर बच्चों का फेस, एज पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखते हुए, और वो प्रोग्रेसिव लर्निंग होती है। जैसे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड को प्रोग्रेसिवली ग्रो होके अपवर्ड होता है, उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन क्लास में जो चैलेंजेस, लर्निंग्स और एक्सपीरियंस भी पीटी टीचर देता है वो भी वेरी करती है, और लेसन प्लानिंग भी उसी के अनुसार वेरी और प्रोग्रेस होते जाते हैं। सो दैट्स व्हाई प्लान्ड प्रोग्रेसिव लर्निंग जो स्कूल करिकुलम यानी पाठशाला या स्कूल में जो होता है, टाइम टेबल बेस्ड अलॉटेड टाइम होता है उसको करने के लिए कि 45 मिनट्स, 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स, टाइम टेबल बेस्ड, और हर बच्चे को डिलीवर टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये 2 टाइप इन्वॉल्व करता है, खेल के सीखना और सीख के खेलना, मतलब लर्निंग टू मूव एंड मूविंग टू लर्न। अभी आपसे ये सवाल है, हम सारे पीटी टीचर्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे हर बच्चा जो हमारा पीटी क्लास अटेंड करता है वो पूरी तरीके से फिजिकली एक्टिव है, उसके 100%? आंसर सबके नो आ रहे हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हम कहीं हद तक वो चूक लेते हैं कि हम जो मैक्सिमम हर बच्चों को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं वो कहीं ना कहीं लैग होता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसे होती हैं, वो गेम जो हम सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे होती हैं। कभी ग्रुप्स बड़े होते हैं तो बच्चा वेट करता है कि अपना टर्न आए, तो कंपैरेटिवली एक बच्चा ज्यादा फिजिकली एक्टिव होता है कंपेयर टू अदर्स। तो जाहिर सी बात है सबकी जो एक्यूमुलेटेड फिजिकल एक्टिविटी टाइमिंग हो वो सेम ना हो। किसी ने 45 मिनट्स के पीरियड दौरान 30 मिनट फिजिकली एक्टिव रहा, कोई 25 मिनट्स, कोई 20 मिनट्स, कोई हार्डली 10 मिनट्स और कोई एक्टिव ही नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिजिकल एक्टिविटी टाइम ऑफ एवरी स्टूडेंट is not determined by the length of the PE period, but by the active time of every individual student in PE class. तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो PE क्लास फिजिकल एक्टिविटी टाइम होता है वो हम ऐसे कह नहीं सकते कि 45 मिनट्स का क्लास हो या 50 मिनट्स का क्लास हो तो मेरा बच्चा पूरी 50 मिनट्स फिजिकली एक्टिव रहा है, क्योंकि काफी मर्तबा ये भी होता है कि जब बच्चे क्लास से आके असेंबल होते हैं तो हम काफी हद तक टाइम खो लेते हैं। तो जो हमारा लिमिटेड टाइम स्लॉट हमें अवेलेबल होता है, हमारी एज अ पीटी टीचर हम सबकी यही कोशिश रहती है कि हम उस पीरियड में काफी हद तक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश करें। तो काफी बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि पीई क्लास में बच्चे सेडेंटरी बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे पीई क्लास होने के बावजूद भी क्लास में बैठे रहते हैं और ग्राउंड पे नहीं आते हैं। कभी जब पीटी टीचर बोलता है कि जाओ पानी का ब्रेक लेके आओ, पानी पी के आओ, तो वो वापस नहीं आते, वहीं पे सीढ़ियों में बैठ के चिट चैटिंग करते हैं। काफी हद तक फीमेल्स जो होती हैं वो क्लास मिस करती हैं ये कह के कि सर मुझे फीमेल प्रॉब्लम है और कोने में बैठ जाती हैं। और थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बैठ के बस खेलना पसंद करते हैं, जबकि पीई पीरियड हो, उनको ग्राउंड मिल रहा है, उनको स्पेस मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तब भी वो उसका फुल उपयोग नहीं करती है और बैठ के खेलना पसंद करती है। तो काफी मर्तबा हमें पीई क्लास में सेडेंटरी बिहेवियर भी देखने को मिलता है। तो अभी हम भी डिस्कशन करेंगे कि एज पीई टीचर हम क्या वो इनोवेटिव थिंकिंग या थॉट्स ला सकते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स का सेडेंटरी बिहेवियर पीई क्लास के दौरान कम से कम करें।
से दरख्वास्त करेंगे कि वो शेयर करें अपने आइडियाज कि वो पीरियड पीई क्लास में कैसे बच्चों का सेडेंटरी बिहेवियर को कट डाउन कर सकते हैं। आपके इनोवेटिव आइडिया सबके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज, जो आप आपकी क्लास में यूज करते हैं एज ए टूल। तो एक बार रिपीट करें। You can take the class in standing. अल्फिया का शायद थोड़ा आवाज कट रहा है, मैं रिपीट करूंगा कि हमको फिजिकल एजुकेशन क्लास में हम बच्चों को ज्यादा एक्टिव कैसे करें और उनका जो बैठने वाला बिहेवियर है, सेडेंटरी बिहेवियर है, उसको कम करें। तो ऐसा आप कौन कौन सा ऑन ग्राउंड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करे हो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं वो। कुछ लोगों ने लिखा है कि एक्टिविटी को एंजॉय करो, कंपटीशन की भावना बढ़ाए, स्टूडेंट्स का ओपिनियन पूछें, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, दैट्स गुड। कंपटीशन आपने बोला, पी में कंपटीशन कराने से बच्चे और सेडेंटरी बिहेवियर कम होगा। खेल का भावना बढ़ाना, इंटरेस्टिंग गेम खिलाना ग्रुप में, बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स लिंक करना, फ्री प्ले कराना, मॉर्निंग में क्लास रखना, बच्चों से खुलकर आनंददायी बनाना। बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं शिक्षक की तरफ से। मोटिवेट टुवर्ड स्पोर्ट्स, फ्री प्ले, एंटरटेनमेंट। ऐसा थीम निकल के आ रहा है कि एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, टीम स्पिरिट, ऐसा ऐसा कराएंगे तो सब बच्चे एक्टिव रहेंगे। बहुत बढ़िया अमित सर, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रह गया था जिसके वजह से मेरी आवाज कट रही थी। अभी आई होप सही है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, तो थ्रू आउट द डे अगर आपको स्कूल में हम अगर देखने जाए टाइम टेबल के अनुसार तो असेंबली होता है, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास में बैठते हैं, फिर सब्जेक्ट होती है एक के बाद एक, एक के बाद एक। थ्रू आउट द डे भी वो ना चाहते हुए भी सेडेंटरी होते हैं। तो ये थ्रू आउट द डे हम उनका सेडेंटरी बिहेवियर कैसे कम कर सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं? एनी इनोवेटिव आइडियाज जो आप प्रैक्टिस करते हो आपके स्कूल में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? रिक्रिएशन गेम लास्ट में करवाना, ओके, मतलब क्लास खत्म होने के बाद रिक्रिएशन गेम छोटा बहुत करवाना। बट हाँ, इंजॉयमेंट ऑफ द बच्चों पे फोकस रखना, कॉम्पिटिटिव और एंटरटेनिंग बनाना, स्टैंडिंग क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास को स्टैंडिंग, या फिर जो हमारे पास छोटे छोटे अलॉटेड टाइम होते हैं दिन में, जैसे आपको बच्चे असेंबली में मिलते हैं ऑलरेडी सारे के सारे असेंबल होके, तो आप वो छोटा सा थोड़ा सा वहां पे टाइम निकाल के उनको फिजिकली एक्टिव बना सकते हो, मे बी फॉर मूवमेंट फॉर 5 to 6 minutes देयर। और क्लास शुरू होने की जब एक टीचर जाके दूसरी टीचर आती है तो आप 5 मिनट दें बच्चों को शफल अप करने के लिए, मूव करने के लिए। आप क्लास में जब एंटर करें एक फन या इंजॉयमेंट बेस्ड गेम से स्टार्ट करें जो आपकी क्लास रिलेटेड भी हो। इससे करने से बच्चे अटेंटिव भी रहते हैं, क्योंकि स्टडीज भी ये सपोर्ट करती हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स इन गेनिंग अटेंशन, movement helps in your neural growth, etc. साइंटिफिकली सपोर्टेड एंड प्रूवन है। तो गेम से क्लास स्टार्ट करें, जो आज का टॉपिक हो उससे रिलेटेड हो। आप आपके फेलो टीचर्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, आपके जो फेलो टीचर्स है जो दूसरे सब्जेक्ट्स लेते हैं उनको बता सकते हैं कि आप ये छोटा गेम ट्राई कीजिएगा। सो दैट विल एक्चुअली एंगेज देम एंड हैव, उनको क्रिएट भी करेगा वो लाइकिंग टुवर्ड्स। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल टर्म है स्कूल स्पोर्ट्स, विद्यालय खेल। सो विद्यालय खेल बेसिक इजी वे की ये खेल कह सकते हैं कि जो विद्यालय में
समय होता है, एक नॉर्मल रूटीन समय, वो समाप्त होने के बाद जब हम बच्चे को कोई स्पोर्ट्स सिखाते हैं वो स्कूल स्पोर्ट्स होगा। और पीई वो है, फिजिकल एजुकेशन वो है जो स्कूल करिकुलम में ही डिवोटेड टाइम दिया गया का स्कूल समय समाप्त होता है, उसके बाद जो बच्चे का इंटरेस्टेड स्पोर्ट होता है उसको आप सिखा रहे हो। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ कि कुछ प्रॉब्लम का इशू था। तो मेरे कुलीग ने एक्सप्लेन किया कि स्कूल में जो स्पोर्ट्स होता है, विद्यालय खेल, क्योंकि विद्यालय का मेन पर्पस एजुकेशन है, तो स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम के बाहर, पहले भाग में जो हम बच्चों को किसी खेल के लिए ट्रेनिंग कराते हैं उसको हम स्कूल स्पोर्ट्स बोलते हैं। और इसको हम आउट ऑफ स्कूल आवर्स लर्निंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्कूल के दौरान हमारे विषय जो मैंडेटरी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें अलग अलग विषय हैं और उसमें व्यायाम शिक्षा भी एक विषय है। तो वो विषय है, बट अपने अपने एरिया के हिसाब से, बच्चों को रुझान के हिसाब से आप लोग उनको अलग अलग खेल कूद में एंगेज करते हैं। अमित सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब कैरी करे अल्फी, मैं रिपीट ही कर रहा था, अगर कुछ लोग मिस किए तो। थैंक यू अमित सर फॉर दैट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपकी स्लाइड में बहुत सारे बच्चों के फिगर्स है, तो ये पूरा क्लास स्ट्रेंथ अगर हम लेके चले तो जो सर्कल्ड मैंने जहाँ पे सर्कल किया है उतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं स्कूल के कोई कंपटीशन को रिप्रेजेंट करने। लेके चलते हैं कि कबड्डी या खो खो कंपटीशन है जो दो या 3 महीने बाद होने वाला है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और अगर हम स्कूल का टाइम टेबल देखें तो पीटी पीरियड, पीई क्लास के लिए 3 से 4 घंटा, मतलब 1 घंटे का स्लॉट दिया हुआ है। एज अ पीटी टीचर हमें उन सारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए पीई क्लास में। और स्कूल स्पोर्ट्स वो है कि जब हमारा स्कूल अलॉटेड टाइम खत्म होता है उसके बाद जो समय होता है, जो इंटरेस्टेड बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं या जो इंटरेस्टेड बच्चों का फेवरेट स्पोर्ट रहा है उस पे फोकस करें, उसके बारे में सिखाएं। So that will be your school sports. Physical education टाइम टेबल बेस्ड होता है, एक स्कूल करिकुलम में इंक्लूडेड होता है। स्कूल स्पोर्ट्स ये है जो स्कूल का जो एक टाइम टेबल होता है उसके खत्म होने के बाद बियॉन्ड स्कूल आवर्स में जब हम बच्चों को कोई स्पोर्ट्स सिखाते हैं या जब वो सेलेक्ट होते हैं कोई स्कूल को रिप्रेजेंट करने में, उसकी प्रैक्टिस देते हैं, वो स्कूल स्पोर्ट्स होता है। वो दोनों एक नहीं है। आगे बढ़ते एक्शन टाइम के लिए। तो मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी, ऑप्शंस दिए गए हुए हैं और कुछ सवाल के जवाब भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे मैं पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त करूंगी कि वो चैट बॉक्स में जाए और हमारे साथ एक्शन आंसर शेयर करें। तो पहला वाला सवाल है, राइट एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विदाउट इक्विपमेंट दैट कैन बी डन एट स्कूल। तो कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो आप स्कूल में कर सकते हो और उसको करने के लिए इक्विपमेंट का कोई जरूरत नहीं होता है। सूर्य नमस्कारा, योगा, रनिंग, रन, योगा, खो खो, सूर्य नमस्कारा, पीटी, योगा, ओके। कबड्डी, पीटी, कबड्डी, डांस, ओके, रोप स्किपिंग, योगा, एरोबिक्स। ठीक है, काफी हद तक सबके आंसर्स मिलते हैं यही कि फ्री हैंड फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक्स, सूर्य नमस्कारा, योगा, ये सारे जो आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट वाला सवाल, इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज? सीढ़ियों को चलना फिजिकल एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है?
शारीरिक गतिविधि या व्यायाम है, और अगर आप बोलते हैं कि ये शारीरिक गतिविधि है तो आपको बताना है क्यों, और अगर आप बोलते हैं कि सीढ़ियां चलना व्यायाम है तो आपको बताना चाहिए कि क्यों आपको ऐसा लगता है। जिन्होंने बताया है कि व्यायाम है तो वो बताया मुझे क्यों, और जिन्होंने बताया बोथ, दैट्स फाइन। जी हाँ, सही उत्तर ये है कि वो दोनों ही आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि फिजिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा एक्सरसाइज है। तो अगर हम सीढ़ी चढ़ना एक पैटर्न और प्लानिंग करके करें, या एक प्लान्ड बिहेवियर अपने लोअर मसल का स्ट्रेंथनिंग गोल अचीव करने के लिए करें, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज के साइड पे मूव होगा, यानी व्यायाम के। अगर हम नॉर्मली छठे फ्लोर में रहते और मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर को जाना है, या मेरा क्लास के स्टूडेंट्स 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स 3rd फ्लोर में है, तो मैं सीढ़ी लेके जाऊंगी, तो वो होगा शारीरिक गतिविधि, फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो बेस्ड ऑन द पर्पस हम क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, किस लिए कर रहे, वो वेरी होगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि में आएगा, या एक्सरसाइज या व्यायाम कहा जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हो, सेडेंट्री या फिजिकली इनएक्टिव? और एल्फे एक बार दोबारा से रिकैप कर दीजिए कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, सेडेंट्री यानी गतिहीन व्यवहार वो है जब हम जागे रहते हैं, ठीक है, और जागे रह के कोई कार्य करते हैं, और वो कार्य करने द्वारा जो हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है वो 1.5 मिनट से कम होती है, यानी बैठे रह के कार्य करना या लेटे रह के कार्य करना। इन कार्य करने जैसे मोबाइल इस्तेमाल करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना, बैठ के पढ़ाई करना, बैठ के लैपटॉप के आगे काम करना, ये सारे गतिहीन व्यवहार के उदाहरण है। फिजिकल इनएक्टिविटी परिभाषा डेफिनेशन के अनुसार ये है कि जो इंडिविजुअल का फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस दिया गया हुआ है, अगर वो इंडिविजुअल उस गाइडलाइंस मीट नहीं करे तो वो फिजिकली इनएक्टिव है। आई होप अभी क्लियर हो गया है सबको। तो जो लोग फिजिकली इनएक्टिव है वो ये मानते हैं, जैसे अभी कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बताया कि वो फिजिकली एक्टिव भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो दोनों ऑप्शंस में नहीं है। मगर जो बोल रहे हैं कि अपने आप को फिजिकली इनएक्टिव है, तो कोशिश कीजिए कि आप वो 30 मिनट्स अचीव करें। और सेडेंट्री बिहेवियर में जो अपने आप को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो आप अपना जो सेडेंट्री बिहेवियर गतिहीन व्यवहार है उसको ब्रेक करें, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की कोशिश करें, ताकि और उस ब्रेक दौरान अपने आप को एक्टिव रखें, कुछ मूवमेंट करें, या एक छोटा सा राउंड घर में चल के आए, या छोटे छोटे बॉल्स लेके आप बाउंस कर सकते हो, या वॉल के अगेंस्ट खेल सकते हो। तो इस तरीके आप भी आपका रिफ्रेशमेंट कर सकते हो, फुल फॉर्म में आ सकते हो और एक्टिव भी रह सकते हो। तो ये छोटे छोटे माइन्यूट ब्रेक गेम्स आप खेल सकते हो, या बच्चों को भी बता सकते हो कि अभी लॉकडाउन के चलते सेशंस भी ऑनलाइन हो रही हैं, तो काफी हद तक बच्चों को बैठे रहना पड़ता है। तो जब छोटे छोटे सेशंस हो उनके, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि वो आपका उनका सेडेंटरी पैटर्न ब्रेक करे, और ज्यादा से ज्यादा जब ब्रेक मिले फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। ये हम सबके लिए सबसे आसान प्रश्न होना चाहिए कि मेजर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक गतिविधि और शारीरिक शिक्षा के दोनों में क्या ऐसा मेजर अंतर है? मैं दोहराती हूँ सवाल कि शारीरिक शिक्षा और शारीरिक गतिविधि में ऐसा क्या मेजर अंतर है, या आपको लगता है कि दोनों ही सेम है? थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल।
अच्छा, किसी ने बताया थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल का लोग मानते हैं कि वो दोनों सेम नहीं है, क्योंकि काफी हद तक लोगों ने बताया है कि जी हाँ वो सेम नहीं है, उनमें अंतर है। फिजिकल एजुकेशन थियोरी है और फिजिकल एक्टिविटी मोर ऑफ प्रैक्टिकल। लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, अलग अलग है, सेम नहीं। ओके, मैं बताना चाहूंगी इनका मेन डिफरेंस ये है कि फिजिकल एजुकेशन जो होता है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ही हम सिखाते हैं बच्चों को, बट जो हम अप्रोच लेते हैं सॉरी प्लान्ड अप्रोच, या कैसे सिखाना है ताकि बच्चों को हम एंगेज करें, एंकरेज करें, और जो फिजिकल एक्टिविटी गोल है उसका एक छोटा पार्ट एक्सरसाइज, वो भी कैसे अचीव करें। तो उन दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं पीई क्लास में। तो हमने देखा था हमारे स्लाइड में कि खेल 3 किस्म के होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। सॉरी, म्यूट हो गया था। तो प्रश्न ये है कि हमने देखा था कि खेल 3 किस्म के होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्टडी स्ट्रक्चर्ड। तो आपको क्या लगता है कि टाइप ऑफ प्ले बच्चों के एज के अनुसार सिलेक्ट करना चाहिए या एज पर योर चॉइस? आंसर्स आ रहे हैं ए, यानी एज पर योर चॉइस। किसी ने बताया एज, अकॉर्डिंग टू एज, चॉइस। मिक्स्ड रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं ये कहते हुए कि एज पर एज और एज पर चॉइस के ऑलमोस्ट इक्वल रेस्पॉन्सेस। किसी ने बताया बोथ, तो मैं बोलूंगी एक्चुअली बोथ भी सही ऑप्शन है, एज पर एज भी हो सकता है, एज पर चॉइस, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगते हैं कि मैं 3rd स्टैंडर्ड स्टूडेंट के साथ हूँ, बट आज एज पर मेरे बच्चों का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हमें ऐसा लगता है कि वो आज थोड़ा लो फील कर रहे हैं। तो आप एज पर योर चॉइस से स्टार्ट कर सकते हैं उनका वो जो इंटरेस्ट है गेम को लाने के लिए, और उसके बाद एज पर एज स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स को आपका गोल है सेशन का, उस पर स्लोली शिफ्ट कर सकते हैं। तो बच्चों का ध्यान हासिल करने के लिए आप एज पर योर चॉइस हम फन एक्टिविटीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बार जब आप वो अचीव कर ले हो, उसके बाद स्लोली जो इस सेशन का गोल है, जो पीई क्लास का उस टाइम का गोल है, उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट वाला सवाल, पीईटी टीचर कहाँ सबसे ज्यादा पावर पोजेस करता है स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिव रखने के लिए? स्कूल में, होम में, कम्युनिटी में, या सारे ही 3 ऑप्शन, स्कूल, होम, कम्युनिटी में? एक स्कूल, 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 तीनों में। ओके, वहां यहाँ पे टाई हो रहा है। किसी ने बताया मैदान में, दैट्स वेरी नाइस, बट स्कूल, होम, ऑल, कम्युनिटी, ऑल द अबव। एक्चुअली देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिनेरियो ये है कि पीटी टीचर मैक्सिमम पावर स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने का स्कूल में होल्ड करता है, मगर रियल लाइफ में पीटी स्टूडेंट्स की लाइफ में एक डिफरेंस ला सकता है, और वो उन्हें स्कूल में जो सीखने का जो आर रहता है उसमें अगर उसका क्लास इतना बच्चे को पसंद आया हो, इतना एंगेजिंग, एनकरेजिंग और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट हुआ हो, उसको उसका
नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मिला हो जिससे वो मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो, तो वो ना ही बल्कि स्कूल में अपना फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करेगा, बट घर में कम्युनिटी हर जगह फिजिकली एक्टिव रहेगा और लाइफ लॉन्ग रहने की भी कोशिश करेगा। तो मेरे पर्सनली अनुसार ऑप्शन डी है, ऑल द अबव। पीटी टीचर सबसे ज्यादा पावर पोजेस करते हैं स्टूडेंट को फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए, स्कूल, घर, कम्युनिटी, तीनों जगहों में। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। तो लॉकडाउन के चलते हुए काफी हद तक बच्चे अपने घर में बंद है, उनका खेलकूद कम हो चुका है, वो जितना वो टाइम बाहर जाके खेलते थे कम्युनिटी में अपने दोस्तों के साथ, वो कम हो चुका है। तो एज अ पीटी टीचर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास ऐसा क्या इनोवेटिव, या आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ अब तक क्या ऐसा इनोवेटिव आइडिया शेयर किया है जो आपके स्टूडेंट्स को फिजिकली एक्टिव रहने में मदद करे इस लॉकडाउन के दौरान? आपके जो ये आइडियाज है या टिप्स है जब आप शेयर करेंगे, इट्स नॉट ओनली गोना बी बेनिफिशियल आपके लिए, बट जो आपके साथ आज जुड़े हुए उनके लिए भी यूजफुल होगा। आप ये वो लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि मेरे फेलो स्टाफ ने ये किया, मैं भी ये ट्राई करता हूँ। ऑनलाइन मॉर्निंग फिटनेस सेशन, योगा, सूर्य नमस्कार, होम में लाइट एक्सरसाइज, रोप स्किपिंग का वीडियो, योगा, घर में रहकर एक्सरसाइज, योगा। आई थिंक हम सबको योगा बहुत पसंद है। ऑनलाइन फिट इंडिया एक हद तक सही है, योगा करा सकते, एक्सरसाइज करा सकते, मगर मेरा प्रश्न ये है कि आप कैसे कराओगे? जैसे ऑनलाइन सेशन एक बताया, या फिर जब आप आगे होते हो तो योगा, जब आप नहीं होते हो बट फिर भी आप उनको पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रखना चाहते हो, तो आप उनको कैसे वो हासिल करने में मदद कर सकते हो? फन बेस्ड गेम्स, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलने या अपने भाई बहन के साथ खेलने का एडवाइस। योगा एंड जंपिंग, एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक ओपनिंग स्लॉट समझूं, जो हमारा डे 3 का सेशन होगा, इंडोर गेम्स एंड माइनर गेम्स, उस दौरान हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि लॉकडाउन चलते हुए हम हमारे स्टूडेंट्स को कैसे फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स में इन्वॉल्व करके, या किस मीडिया या टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम उनको एक्टिव रख सकते हैं। हम इस पे ज्यादा डिटेल डे 3 पे बात करेंगे। ओके, तो इसके साथ सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच। आई होप सबको कुछ हद तक फंडामेंटल टर्म्स क्लियर हुआ और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रही है अब सबकी वो एक ही लेवल पे है इसको लेकर। तो आई होप सेशन में कुछ तो बेनिफिशियल हुआ। थैंक यू अमित सर एंड थैंक यू सबको। थैंक यू सबको। सब व्यायाम शिक्षकों को नमस्कार। और हम सब आपका आदर करते हैं। हम भी गोपीचंद जी की तरह गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो आप सबके पहले साहस काम के लिए आपका धन्यवाद। और जैसे अल्फिया जी ने बताया कि आज मेन टर्म्स आपसे शेयर किए, हम आगे और इस पे ही बिल्ड करेंगे अगले 4 दिन के लिए। तो फर्स्ट सेशन के लिए आप सबके पेशेंस का धन्यवाद। और कल 12 बजे शार्प हम लोग सेकंड सेशन में शुरुआत करेंगे। थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, Persai sir and the whole education department, and we will keep on learning together। तो कल दोबारा ज्वाइन करते हैं 12 बजे। थैंक यू एवरीवन।